Hi, myself, I'm Ratnabhushan, a friend, motivator, and guide to IAS aspirant, international motivational speaker, leadership trainer, CEO, coach, political strategist, and policy advisor. लोगों से बात शुरू करते समय आप अपने मतभेदों का जिक्र पहले न करें। आप पहले उन बातों पर जोर दीजिए और जोर देते रहिए जिन पर आप दोनों सहमत हो। यदि संभव हो तो इस पर जोर दीजिए कि आप दोनों का लक्ष्य एक ही है और आप में अंतर सिर्फ उस साधन का है जिसके माध्यम से आप लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। इस कोट को मैंने डेल कार्नेगी की प्रसिद्ध पुस्तक लोक व्यवहार से लिया है। The most important news of today's are SC keeps Lokur Committee's appointment in abeyance. The Supreme Court on Monday decided to keep in abeyance its pre-Dasahara or order appointing for Supreme Court Judge Justice Madan B. Lokur to a one-man committee to monitor and prevent stubble burning in Uttar Pradesh, Haryana and Punjab. The decision was put to hold its October 16 order came soon after Solicitor General Tushar Mehta informed a bench led by Chief Justice of India Sharad A. Bobde that Centre had proposed a legislation to tackle the problem which occurs annually and chokes the capital. Women. Women at the heart of the recovery. India's fight against COVID 19 is at the critical juncture. Against the backdrop of recent economic reforms by government and significant stimulus packages, recovery measures are aroused to lift millions from this unprecedented economic health crisis and tackle widening inequalities. The recovery is offering India two golden opportunities. One, to build climate resilience for the most vulnerable by ensuring that stimulus measures are green, and two, to meaningfully address long-standing general qualities. Contesting neighbors. Contesting neighbors revise geopolitical playoffs. The engagement by India and China in the West Asia region is a good example of their metamorphism approach. The 220 has been a watershed moment for the relation between India and China, following the most serious clashes between the two countries in the Galwan region of Ladakh since 1962 war. Relations between New Delhi and Beijing are at new lows. These events have had a cascading effect on the very thought process of foreign policy, not just for New Delhi with regard to its neighborhood, but also Beijing's understanding of its own threat perceptions as well. Strategic autonomy is to a term New Delhi's power corridors are well acquainted with, according to a former foreign secretary of the India, Vijay Gokhale. The editions of the strategic economy is much more different from the Nehruvian era. Thinking of non-alignment, speaking of January 9, 2019, Mr. Gokhale said the alignment is issue-based and not ideological. The president, the president who called a spade. K.R. Narayanan was creative in upholding institutional obligations of an office and preserving of republic equilibrium. This October 27, K.R. Narayanan would have been 100 years old, but no one would perform any rites of the remembrance. Another day and another time, Narayan would have been showcased such a prime success story of India that made one and all meritorious Indians believe that they could find a place under the constitutional sun. A man from an ordinary, humble background could get inducted into the elite Indian Foreign Service. All that counted was his caliber and competence. He had no godfather or clan to speak of for him. Clearing the air, Trump's criticisms may be gratuitous, but India's air quality needs urgent attention. Donald Trump's scathing descriptions of India's air is filthy may have come as an embarrassment for the government, but it has not provoked for fats nationalist backlogs in response to a foreign leader's insult. Looking at the worsening pollution in northern parts of the country, triggered by the stubble burning and later Dussehra festivities, even Mr. Trump's critics found on the cuddles to pick up, while others really readily agreed with them. The US President remark are of course gratuitous,
considering that he has spent his term dismantling many environmental regulations, including those relating to pollution and emission from the coal plants and automobiles. His criticism of India and China is also incongruent as they have pledged to implement the Paris Agreement while Mr. Trump has pulled the US out of the fact. 9 घंटे की पूछताछ में 9 घंटे की पूछताछ में मोदी ने एक कप चाय भी नहीं पी थी। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जब विशेष जांच दल के समक्ष पेश हुए तो 9 घंटे तक चली पूछताछ में उन्होंने 100 से ज़्यादा सवालों के शांति और धैर्य के साथ जवाब दिए। इतना ही नहीं, वह इस दौरान इस कदर संयमित और एकाग्रचित बने रहे कि उन्होंने जांचकर्ताओं के बार बार आग्रह के बावजूद एक कप चाय तक स्वीकार नहीं की थी। एसआईटी ने गुजरात दंगों को लेकर राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी से पूछताछ की थी। एसआईटी प्रमुख रहे आर.के. राघवन ने अपनी पुस्तक ए रोड वेल ट्रेवल्ड में इस मुद्दे पर कई बार जानकारियां सामने रखी हैं कि यह पूछताछ राजनीतिक कारणों से खासी चर्चा में रही थी। हालांकि इससे संबंधित सभी सवाल उस समय शांत हो गए जब एसआईटी ने मोदी को क्लीन चिट दे दी। 2002 के दंगों के जांच के बाद एसआईटी का गठन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर किया गया था। अनुमान से ज़्यादा है चांद पर पानी। चांद पर पानी की मौजूदगी को लेकर नई जानकारियां सामने है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद की सतह पर पहले के अनुमान के मुकाबले कहीं ज़्यादा पानी हो सकता है। इसके ठंडे कोने और चट्टानों में जमा हुआ पानी होने के प्रमाण मिले हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद प्रचुर मात्रा में पानी होना भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस पानी का इस्तेमाल पीने के लिए किया जा सकता है, साथ ही ईंधन के तौर पर भी इसका प्रयोग है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर की टीम ने चांद की सतह पर अणु के रूप में पानी का पता लगाया। पहले के अध्ययनों में पानी और हाइड्रोक्सिल के अणुओं को संभव है। नए अध्ययनों में इस संशय को दूर किया गया है। टीम की अगुवाई पर कर रहे केसी होनीबल ने कहा कि हमने जिस पानी का पता लगाया है वह बर्फ के रूप में नहीं है बल्कि पानी के अणु हैं। ये अणु एक दूसरे से इतनी दूर हैं कि बर्फ या द्रव्य अवस्था में नहीं आ पाते। हरिद्वार में लगेगा सीवर से तैयार सीएनजी का पहला पंपिंग स्टेशन। सीवरेज शोधन से निकलने वाली स्लज से तैयार सीएनजी बायोमीथेन की व्यावसायिक बिक्री के लिए हरिद्वार में पंपिंग स्टेशन लगाने की तैयारी है। कहा जा रहा है कि यह देश में अपनी तरह का पहला पंपिंग स्टेशन है जहां स्लज से बनी सीएनजी की व्यावसायिक बिक्री होगी। जल संस्थान ने इसके लिए जगजीतपुर में भूमि का चयन कर उसका अधिग्रहण भी कर चुके हैं। उम्मीद है कि पंपिंग स्टेशन नवंबर के आखिर तक काम करने लगेगा। इसके लिए सभी औपचारिक पूरी की जा चुकी है और लाइसेंस प्रक्रिया चल रही है। पंपिंग स्टेशन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में संचालित होगा। इसके लिए जल संस्थान का निजी कंपनी एनारोबिक एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड से एएमयू साइन हो चुका। हरिद्वार जल संस्थान की इस पहल ने जनता के लिए बाजार भाव से काफ़ी कम कीमत पर सीएनजी उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर सरकार और जनता दोनों को फील गुड का एहसास कराया है। पहले यहाँ स्लज को खुले में फेंका जाता था जिससे आसपास के इलाकों में गंदगी भी फैलती थी और पर्यावरण को भी नुकसान पहुँचता था। फिलहाल 77 MLD सीवरेज जल से निकलने वाली स्लज सीएनजी बनाने में इस्तेमाल होगी। एक MLD सीवरेज जल में 300 किलो स्लज निकलती है। इस लिहाज से 23,100 किलो स्लज से बायोमीथेन यानी सीएनजी बनाई जाएगी। उज्ज्वल व सुरक्षित है भारत का भविष्य। घरेलू इकोनॉमी की पटरी पर लौटने के मिल रहे संकेतों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक निवेशकों के समक्ष एक बार फिर भारत को एक आकर्षक निवेश बाजार के तौर पर पेश किया है। सोमवार को इंडिया एनर्जी फोरम को बैठक के तहत दुनिया भर के पेट्रोलियम सेक्टर की दिग्गज कंपनियों के प्रमुखों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, भारत पूरी तरह से ऊर्जावान है और इसका भविष्य उज्ज्वल और सुरक्षित है। इस संदर्भ में हाल में ही जारी एक रिपोर्ट में हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कोविड की वजह से ऊर्जा की मांग में भारी कमी के बावजूद भारत आने वाले समय में दुनिया के 3 बड़े ऊर्जा बाजारों में शामिल रहेगा। वैश्विक बाजार में ऊर्जा की मांग की भारत प्रभावित करता रहेगा। मोदी ने बताया कि भारत के घरेलू विमानन सेक्टर में जहाज़ों की संख्या वर्तमान 600 से बढ़कर वर्ष 2024 तक 1200 हो जाएगी। भारत का हर घर तक बिजली से जुड़ जाएगा। देश में LPG भी अधिकांश क्षेत्रों में पहुंच चुका है। दूसरी तरफ भारत पर्यावरण के लिए ज़्यादा सुरक्षित ऊर्जा विकल्पों को बढ़ावा दे रहा है। 2022 तक भारत नवीन ऊर्जा क्षेत्र से 1.75
लाख मेगावाट और 2030 तक 4.50 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इन सबके साथ भारत इकोनॉमी से गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने में भी गंभीरता से काम कर रहा है। भाजपा ने लेह हिल काउंसिल चुनाव में जीत दर्ज की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनता ने भाजपा और केंद्र के मोदी सरकार के भरोसे पर मुहर लगा दी। लेह स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के चुनाव में भाजपा ने दूसरी बार जीत हासिल की है। यह जनमत भाजपा के साथ विकास राह पर आगे बढ़ने का स्पष्ट संकेत है। भाजपा ने काउंसिल की 26 सीटों में से 15 पर जीत हासिल की। कांग्रेस को 9 सीटें मिली, 2 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गई। वहीं पहली बार चुनाव में उतरने वाली आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला। लेह में कांग्रेस और ग्रामीण इलाकों में भाजपा का पल्ला भारी रहा। लाल चौक पर तिरंगा फहराने से रोका तो निकाली तिरंगा रैली। पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के तिरंगे पर विवादित बयान के बाद जम्मू कश्मीर की सियासत उबल उठी। विलय दिवस पर सोमवार को श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को रोका। इस दौरान 3 कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। वहीं श्रीनगर के टैगोर हॉल में विलय दिवस पर समारोह हुआ। इसके बाद श्रीनगर में तिरंगा रैलियां निकाली गई। रैलियां नेका अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा के घरों से बाहर निकली। इससे पूरा गुपकार इलाका भारत माता के जयघोष से गूंज उठा। सोमवार को जम्मू कश्मीर की भारत में विलय की 73वीं वर्षगांठ थी। कश्मीर में सुबह से ही तिरंगा रैलियां शुरू हो गई। श्रीनगर के टैगोर हॉल में विलय दिवस पर समारोह हुआ। इसमें पूर्व एलएसी विबोध गुप्ता, पूर्व एमएलसी सोफी यूसुफ, अल्ताफ ठाकुर और त्राच्छा अंद्रावी मौजूद है। आम लोगों की, विशेषकर युवाओं की अच्छी खासी तादाद थी। टीआरपी की खतरनाक मोड़। पिछले दिनों मुंबई में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक वर्ग से नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जब आप ही या जांचकर्ता, अभियोजक और जज बन जाओगे तो अदालत की क्या जरूरत। दरअसल न्यायालय एक जनहित मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें सुशांत सिंह प्रकरण से जुड़े विषयों पर मीडिया ट्रायल रोकने की मांग की गई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर से जब अभिव्यक्ति की आज़ादी का हवाला देते हुए यह कहा गया कि इससे प्रकरण की गुत्थी सुलझने में मदद मिली है, तो अदालत ने कानून पढ़ने की सलाह देते हुए उसके मुताबिक आचरण करने की नसीहत दी। सुशांत रिया प्रकरण और अब टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट से जुड़ी विवाद ने अदालत की सख्त टिप्पणी करने को मजबूर किया। उसकी शुरुआत तो आपराधिक घटनाओं की तथ्यात्मक रिपोर्टिंग से हुई थी, लेकिन टीआरपी के लालच ने इसे सनसनी रिपोर्टिंग में तब्दील कर दिया। हालात ऐसे हैं कि एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में कोई भी हथकंडा अपनाने से गुरेज नहीं किया जा रहा है। टीवी चैनलों की वजह से लोग अदालत के निर्णय से पहले ही समाज की निगाहों में अपराधी बना दिए जा रहे हैं। यह अन्याय की पराकाष्ठा है। यह सब कुछ शुद्ध रूप से व्यापार बढ़ाने की किया जा रहा है। प्रदूषण पर नया कानून 3-4 दिन में। दिल्ली एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार 3-4 दिन में कानून का मसौदा तैयार कर सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। इस मसले पर जरूरी हो तो अध्यादेश भी लाया जा सकता है। सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस संबंध में जानकारी दी। सरकार ने वायु प्रदूषण की समस्या युद्ध स्तर पर निपटने की बात कही है। सैन्य डाटा साझा करेंगे भारत और अमेरिका आपस में सैन्य डाटा साझा करेंगे। इस बारे में मंगलवार को दोनों देशों के बीच इससे जुड़े एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑन जियो स्पेशियल कोऑपरेशन नाम के समझौता दोनों देशों के बीच 4 अहम समझौते की अंतिम कड़ी है। यह भारत को अमेरिका के सबसे करीबी सैन्य साझेदार देशों की श्रेणी में खड़ा कर देगा। इस समझौते से भारत को अमेरिका की आधुनिकतम नौवहन व हवाई जहाज से जुड़ी तकनीकी के अलावा अमेरिकी क्रूज मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइलों से जुड़ी तकनीक मिलने का रास्ता आसान हो जाएगा। साथ ही भारत अमेरिका से संवेदनशील सैटेलाइट डाटा भी ले सकेगा। इससे दुश्मन देशों की हर गतिविधि पर करीब से नज़र रखी जा सकेगी। जब चीन और भारत के बीच सैन्य तनाव चरम पर है, ऐसे में अमेरिका के साथ बीका समझौता की खास अहमियत है। मंगलवार को भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता होनी है। And now the preamble. This is my humble request to Honorable Prime Minister, Supreme Court and President. Preamble: fundamental rights, fundamental duties must display on each and every public places. Here the preamble is:
We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation, in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Thank you so much.